Meeting today on this first sitting of 18th Lok Sabha, which is a solemn occasion. A new Lok Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion, and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Om Shanti. I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members. I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this House and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024 submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Rajuthevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad Parliamentary Constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then Ministers of Cabinet rank, Ministers of State independent charge, and Ministers of State. Thereafter, the names of other members, state, union territory wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House
while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Shri Narendra Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब ने लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन की सदस्यता की शपथ लेने का आग्रह किया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो अध्यक्ष हैं उनकी समिति को शपथ दिलाएंगे जो 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक सदन की कार्रवाई चलाने में उनकी सहायता करेगी। श्री राधा मोहन सिंह, और उसमें किस किस के नाम है ये भी आपको बता दें। इसमें के सुरेश, जिनको लेकर कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही थी कि इनको जगह दी जाए, टी.आर. बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो राधा मोहन सिंह ने यहां पर शपथ ली है। राष्ट्रपति ने लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में मेहताब की सहायता के लिए जो प्रोटेम स्पीकर हैं भृतहरि महताब, उनकी सहायता के लिए के सुरेश, टी.आर. बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और संदीप बंदोपाध्याय को नियुक्त किया है। तो वो शपथ लेते हुए सबसे पहले देखिए राधा मोहन सिंह जो कि बिहार से आते हैं, बिहार से सांसद चुनकर आए हैं, उन्होंने शपथ ली। और ये वो लोग हैं श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो आगे सदस्यों को शपथ दिलाने में सहायता करेंगे। अब देखिए नाम आता है फग्गन सिंह कुलस्ते का। बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और अब फग्गन सिंह कुलस्ते शपथ लेने जा रहे हैं। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। फग्गन सिंह कुलस्ते ने यहां पर शपथ ली। इससे पहले राधा मोहन सिंह ने शपथ ली, अब फग्गन सिंह कुलस्ते ने शपथ ली। अब देखिए 3 नाम और हैं जिनको अभी शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें के सुरेश है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें डीएमके की तरफ से टी.आर. बालू का नाम है और साथ ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से संदीप बंदोपाध्याय का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिनको अभी आप देख रहे हैं जो शपथ ले रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक सदन की कार्रवाई चलाने में भर्तृहरि महताब की मदद करेंगे, यानी सहायता करेंगे। बंदोपाध्याय, अब ये देखिए संदीप बंदोपाध्याय जो कि तृणमूल कांग्रेस से हैं, अब वो शपथ लेने वाले हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जिस समिति में कुछ नाम दिए गए थे उसमें संदीप बंदोपाध्याय का नाम था, तृणमूल कांग्रेस का। उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ लेकिन संदीप बंदोपाध्याय वहां नहीं पहुंचे, तो उसके बाद राजनाथ सिंह ने यहां शपथ ग्रहण की। राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण की हस्ताक्षर करते हुए, और ये सभी अध्यक्षों की समिति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को लोकसभा सदस्य के तौर पर ये आने वाले वक्त में शपथ दिलाएंगे और 26 श्री जून को अमित शाह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो अभी तक किस किस ने शपथ ली आपने देखा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उसके बाद राधा मोहन सिंह, फिर फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम बुलाया जाता है, वो शपथ लेते हैं, और फिर संदीप बंदोपाध्याय का नाम बुलाया जाता है, अब चूंकि वो मौजूद नहीं रहते। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह वो शपथ लेते हैं, और अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमित शाह ने शपथ ली है और यह हस्ताक्षर के बाद अब आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। मोदी 3.0 शुरू हो चुका है, संसद सत्र आज से शुरू हो गया है और एक तस्वीर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, नितिन जयराम गडकरी, और अब नाम बुलाया गया है नितिन गडकरी का। स्टार परफॉर्मर इन्हें कहा जाता है, लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और पिछले कार्यकाल में जो अद्भुत काम नितिन गडकरी की तरफ से किया गया है, पूरे देश और दुनिया में उसकी चर्चा हुई है। मैं नितिन जयराम गडकरी
जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो गया। नितिन गडकरी ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद अब हस्ताक्षर करने के लिए जाते हुए और पहले सत्र की जो शुरुआत हुई है, हालांकि आज शुरुआत में ही आपको थोड़ा सा हंगामा सुनने को मिला था। हंगामा, शोर शराबा आज शुरुआत में हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया था। उसके बाद कई और सदस्यों का नाम लिया गया जिन्होंने यहाँ शपथ ग्रहण किया। श्री शिवराज सिंह चौहान। और अब देखिए शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया गया है और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया गया, लोगों की तरफ से उत्साह देखा गया। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद सांसद बने। मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान जीत कर आए हैं। एक बड़ी जीत शिवराज सिंह चौहान को मिली है और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूत किया और अब केंद्र सरकार को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिवराज सिंह चौहान पर काफ़ी भरोसा जताया है और इसीलिए मध्य प्रदेश से अब केंद्र की राजनीति में केंद्रीय मंत्री बने हैं, कृषि मंत्री बने हैं और अब शपथ लेने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद आगे की कार्रवाई जारी होगी। श्री मनोहर लाल। और ये भी एक खास बड़ा नाम, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा से जीत कर आए हैं। लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीत कर आए हैं और मुख्यमंत्री की बागडोर भी संभाल चुके हैं हरियाणा की। मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद अब सांसद बने और सांसद बनने के बाद एक अहम जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। तो बड़े नाम, बड़े चेहरे आपके सामने। बीच में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले शपथ ली, राजनाथ सिंह ने फिर शपथ ली, फिर अमित शाह ने शपथ ली। आप ये भी कह सकते हैं कि वरिष्ठता के हिसाब से क्रम में वो शपथ ली गई है और ये तीन बड़े चेहरे बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी को कहां से कहां तक पहुंचाया, ये आज पूरा देश देख रहा है। श्री HD कुमारस्वामी। अब देखिए HD कुमारस्वामी का नाम सामने आया है। HD कुमारस्वामी कर्नाटक से बड़ी जीत हासिल करके आए
ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. जनता दल सेक्युलर से एच.डी. कुमारस्वामी अपनी क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ भाषा में उन्होंने शपथ ली है और अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी एच.डी. कुमारस्वामी को भी सौंपी गई है. और ये वो तमाम चेहरे हैं जो इस बार मोदी 3.0 में केंद्र सरकार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही देश के विकास की जिम्मेदारी भी इन तमाम बड़े चेहरों पर होगी. देश किस प्रगति के कैसे प्रगति करेगा, किस गति के साथ प्रगति करेगा, ये इन लोगों पर भी निर्भर करेगा, इनकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा. श्री पीयूष गोयल. मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा